चलिए सब फटाफट नोटबुक निकालो। अपना टॉपिक कहाँ से बाकी था? हम लोग लिखने वाले थे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, है ना, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। આજનો આ વિડિયો લાઈવ એમ કાલની ટેસ્ટ પણ લાઈવ કરાવો. ઓન ધ સ્પોટ ક્વેશ્ચન બનાવવાના અને ઓન ધ સ્પોટ તમારે આન્સર આપવાના. ઓકે, ચેપ્ટર કયો? કયા ચેપ્ટરની ટેસ્ટ? અચ્છા, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. તો કાલે બધા માટે અલગ અલગ ક્વેશ્ચન હશે, એટલે મેં આવીશ, તમને ક્વેશ્ચન લખાઈ દઈશ. ચલો આ લખો, આન્સર લખો, ક્વેશ્ચન લખો, આન્સર લખો. ઓકે, મજા આવે. પ્રોપોગેશન ઓફ સાઉન્ડ આપણો ટોપિક છે. આપીશ ને કાલની ટેસ્ટ, એબસેન્ટ નહીં રહે ને? ઓકે છે. પ્રોપોગેશન ઓફ સાઉન્ડ. પ્રોપોગેશન ઓફ સાઉન્ડની આપણે વાત કરીએ તો આની પહેલા જોયું હતું આપણે કે પ્રોપોગેશન શેમાં થશે? જ્યારે મીડિયમ હોય તો જ થાય, બરાબર. વેક્યુમ હોય તો એમાંથી પ્રોપોગેશન ઓફ સાઉન્ડ પ્રોપોગેટ થતો નથી, હે ને? દક્ષ, મીડિયમ કયા કયા હોય છે? મીડિયમ એટલે કયું મીડિયમ? ઇંગ્લિશ મીડિયમ, ગુજરાતી મીડિયમ, હિન્દી મીડિયમ, કયું મીડિયમ? અચ્છા, વેરી ગુડ, ઇંગ્લિશ મીડિયમ. બોલ તું બોલ. હા, સોલિડ લિક્વિડ ગેસ બોલે છે, તું ઇંગ્લિશ મીડિયમ કેમ કહે છો? સાઉન્ડ, જેમ કે આપણે દક્ષભાઈ કીધું એ રીતના સાઉન્ડ કઈ રીતના પ્રોપોગેટ થાય છે? સાઉન્ડ પ્રોપોગેટ થાય છે ઇંગ્લિશ મીડિયમથી. ઓકે, અને યુકે કીધું છે કે ભાઈ साउंड प्रोपोगेट થશે फ्रॉम सॉलिड लिक्विड एंड गैस. प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू मीडियम. साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू मीडियम. So please give the heading propagation of sound and write very first point. Sound propagate or travels through मीडियम. अब ये कौन सा मीडियम है? इंग्लिश, गुजराती, हिंदी? हाँ, करी तो करी. ओके, हाँ, सॉलिड लिक्विड गैस. तो वो वाला अलग से आपको एक पॉइंट लिखने का है. मीडियम कैन बी solid, liquid, gas. બંધ કરી દે પાછો, મેં કીધું બંધ કરી દે. ઓકે, મીડિયમ કેન બી સોલિડ લિક્વિડ ગેસ. મીડિયમ કેન બી સોલિડ લિક્વિડ ગેસ. હવે સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ કઈ રીતના થાય છે? સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ વાઇબ્રેશન. કાલે આપણે વાઇબ્રેશન કર્યા હતા અને પણ એ બરાબર વાઇબ્રેટ નતો થતો, તો આજે આપણે કંઈક બીજા નવા માણસને વાઇબ્રેટ કરવો પડશે. अच्छा अच्छा, तारा पोते ज आવું છે, सेल्फ वॉलंटियर? हाँ हाँ, काले तो नता आया. वाइब्रेट होना है तेरे को, है ना? हाँ, तो साउंड निकलेगा, है ना? स्टील की स्केल लेके आओ, वाइब्रेट करते हैं फिर, है ना? इन ऑफिस नहीं, इन बैग ऑफ यू, है ना? રહેવા દે ભાઈ. ओके, આવડે આવડે એમ તો આવડે ને આપણે. मीडियम कैन बी सॉलिड लिक्विड एंड गैस. ओके, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेशन में होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है. ओके, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं भाई? कि वही लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स. ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब क्या होता है? और कुछ वाइब्रेट होता है कि नहीं होता? और क्या वाइब्रेट होगा? ऑब्जेक्ट. ओके, के આપણે માનીએ કે ઓબ્જેક્ટ, મેં અત્યારે એક ઓબ્જેક્ટ છું, તો મારી આજુબાજુ શું છે? એર, બરાબર, એર છે. ઓકે, ऑब्जेक्ट के आसपास क्या है? एयर है. व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, air around object also vibrates. Air around object also vibrates. When object vibrates, comma, okay, medium, air
एयर क्या है, एयर अपने लिए मीडियम है ना, हम यहाँ पे मीडियम लिखेंगे वर्ड, ओके मीडियम, उसमें हम क्या लिखने वाले हैं, एयर पार्टिकल्स ऑल्सो, मतलब कि मीडियम मीडियम रुको, पार्टिकल्स के बाद नहीं, पार्टिकल्स मीडियम पार्टिकल्स ऑल्सो वाइब्रेट्स, ऑल्सो वाइब्रेट्स। इसका ही हमने डायग्राम देखा था टेक्स्ट बुक के अंदर, डायग्राम આપણે જે જોયો હતો કયો હતો, ટ્યુનિંગ ફોર્ક વાળો, ખબર છે ને ટ્યુનિંગ ફોર્ક, પછી આપણે વાત કરેલી પેલી સાણસી માથા પર મારી જોજો એકવાર એ વાળો, ઓકે ટ્યુનિંગ ફોર્ક, તો તમારે એ વાળો ડાયગ્રામ અહીંયા બનાવવાનો છે ટ્યુનિંગ ફોર્ક વાળો। અને આ જે ટ્યુનિંગ ફોર્ક છે ને વાઇબ્રેટ કરાવવાની છે, ઓકે વાઇબ્રેટ ધીસ ટ્યુનિંગ ફોર્ક, વાઇબ્રેટ ધીસ ટ્યુનિંગ ફોર્ક कैसे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कि अपनी जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट हो रही है, જ્યારે ટ્યુનિંગ ફોર્ક વાઇબ્રેટ થશે, ઓકે વેન ઓબ્જેક્ટ વાઇબ્રેટ્સ એર પાર્ટિકલ also vibrate, okay air particle also vibrate, air particle also vibrate। तो एयर पार्टिकल कहाँ के, उसके जो पास में होगा, करीब में होगा, उसके बाद जो एयर पार्टिकल होगा वो भी वाइब्रेट होगा। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ एयर पार्टिकल्स, ये भी अब वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होने पे क्या करेगा, ये उसके बाद वाला जो पार्टिकल होगा उसको वाइब्रेशन ट्रांसफर करेगा, ये वाला उसके बाद वाले पर ट्रांसफर करेगा वाइब्रेशन। और ऐसे ही करते करते आज रीते जे आपरो साउंड છે, साउंड मीन्स वाइब्रेशन, साउंड मीन्स वाइब्रेशन, ओके वाइब्रेशन ट्रावेल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू रिसीवर, प्रोड्यूसर टू रिसीवर, ओके वाइब्रेशन ट्रावेल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू रिसीवर। અહીંયા રિસીવર ની આપણે વાત કરીએ તો રિસીવર માં શું હશે, क्योंकि મારો બહુ ખરાબ કાન બને છે, એ ભાઈ કાન બનાના था આપણે જો ભાઈ આવડે છે ડ્રાइंग, स्वीकार करी लो कि ये अपना ईयर है भाई, ओके और ये क्या है अपना ट्यूनिंग फॉर्क, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू ईयर रिसीवर, रिसीवर कई रीते जाय छे, हाँ लखी दो लखवानो छे ईयर, ओके अक्षय पता चला कुछ क्या, कैसे जाता है, चलते चलते, तो पर एयर पार्टिकल कैसे चलते चलते, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को देखा है ना, तो फिर वो कैसे होगा, चलते चलते जाएगा क्या पार्टिकल, देखो ये पार्टिकल को मैंने वाइब्रेशन दिया, तो अब ये मान ले और कोई पार्टिकल है ही नहीं, और कोई पार्टिकल ही नहीं है, सिर्फ ये पहली जो लाइन है ना सिर्फ इतने पार्टिकल है, तो क्या होगा, हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, एयर के कोई पार्टिकल्स है ही नहीं, सिर्फ ये पहली लाइन है उतने पार्टिकल है, तो क्या रिसीवर तक पहुंचेगा आवाज, नहीं पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन हम क्या बोल रहे कि साउंड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके इन एनी केस वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो साउंड एनर्जी जो थी, वाइब्रेशन जो था, तो वो सेम एनर्जी सक्सेसिव पार्टिकल को ट्रांसफर होती है, जितना ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट हुआ है उतने अमाउंट में पार्टिकल वाइब्रेट होगा,
और उसके बाद वाले पार्टिकल को वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करेगा। और उसका मतलब क्या, वो ट्रांसफर करके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, ट्रांसफर कर कर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। कौन आ जाता है? पार्टिकल आ जाता है। किसका पार्टिकल? मीडियम का पार्टिकल, एयर का जो पार्टिकल है। ओके, मीडियम ट्रैवल नहीं करता, मीडियम के जो पार्टिकल्स है ना वो ट्रैवल करते हैं, वो प्रोपोगेट करते हैं, वो साउंड को लेके जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। प्रोड्यूसर अपनी जगह पर, पार्टिकल भी अपनी जगह पर ही है, वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट होकर यहाँ से एनर्जी लेकर दूसरे पार्टिकल में दे रहे। पहले पार्टिकल से मैं एनर्जी लूंगा, मैं फिर तीसरे पार्टिकल को एनर्जी दूंगा। ओके, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आगे चलता है टिल इट रीचेज ईयर ऑफ रिसीवर। ओके, रिसीवर तक पहुंचे तब कि व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स मीडियम पार्टिकल, ओके, मीडियम पार्टिकल आल्सो वाइब्रेट्स, मीडियम पार्टिकल आल्सो वाइब्रेट्स। ओके, अब ये वाला जो है ना कि ये एक दूसरे को ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। इसके बाद और एक तुमको डायग्राम बनाने का है कि जब एक पार्टिकल दूसरे को ट्रांसफर करेगा तब वो तो रेस्ट पर ही होगा, वो पार्टिकल तो रेस्ट पर ही होगा ना, है ना। अक्षय आ जाना। एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। हाँ, निशान तू भी आ जा। आओ आओ, आप पधारिए महाराज, आप भी स्टेज पे आ जाइए, है ना। तुम भी आ जाओ, तुम तो रिसीवर हो भाई, हाँ हाँ, इंग्लिश मीडियम रिसीवर। હા અરે રિસીવર નીચે ઉભા રહે તો પણ ચાલે, પછી ભેગું નહીં થાય, હું આખો પડી જઈશ। થોડુંક नजीक आओ, तू उतना भी ज्यादा है ना, भागना मत। देखो मैं हूं ना, क्या हूँ? हाँ परफेक्ट, ऑब्जेक्ट हूँ। अभी मैं ऑब्जेक्ट, अब मैं क्या होने वाला हूँ? मैं वाइब्रेट हूँ। तू क्या है? पार्टिकल, पे- हाँ, एयर पार्टिकल। एयर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है जो मेरे करीब खड़ा है। अब मैं वाइब्रेट करके इसको अपनी जो एनर्जी वो ट्रांसफर करूंगा, है ना। ऐसे नहीं ऐसे कि मैं वाइब्रेट करूंगा तो देखो मैं यहाँ पे गया, ये मेरा टू पोजीशन हुआ, टू एंड फ्रो। फिर वापस आ जाना भाई। अब तू तू रिसीवर है, तेरे को वाइब्रेट नहीं करना है, तू रिसीवर है, तू ठोस पदार्थ है, तू वहां पे ही रहेगा। ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन, पोजीशन मैंने नहीं बदली, अब वहां तक जा रहा है। ओके, अब वापस मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट की ये देखो, ये मैं यहाँ तक गया ना, हम दोनों चिपक गए, है ना, हम दोनों कंप्रेस हुए। अरे भाई हम चिपक गए। हाँ तो सीन उभा कर रहे थे, करते नहीं। हाँ, है ना, तो अब हम चिपक गए, हम हमारा क्या हो रहा है? हम लोग क्या हो गए? कंप्रेस। यस, कंप्रेस, है ना। मैंने अब इसको एनर्जी ट्रांसफर की। अब देखना, अब ये क्या होगा, देना। हाँ, इसने वहां पे एनर्जी ट्रांसफर की, दे 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 ऐसे थोड़ा पोजीशन पे रहे, स्टॉप। हाँ, अब देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो वहां पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, वो दोनों चिपक गए, कंप्रेशन। अब हम दोनों दूर दूर हो गए, इसको रेयरफैक्शन बोलते हैं, रेयरफैक्शन। फिर ये क्या करेगा? वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, ये आ गया ओरिजिनल पोजीशन पे, वो फिर रिसीवर तक पहुंचाएगा। और एक बार ये करते हैं कि देखो मैंने इसको एनर्जी दी, ये कंप्रेशन, ओके, फिर रेयरफैक्शन, और मैं आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ये भी आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, और वैसे करते करते साउंड पहुंचता है टू द लास्ट पार्ट। ओके, क्लियर, समझ में आया? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और दिस कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, okay, propagates sound through medium. Continuous compression and rarefaction of medium particles, okay, produces sound, okay, कि मैंने अब इसको कंप्रेस किया, वो वहां पे जाएगा, रेयरफैक्शन, साउंड गया, वापस कंप्रेस किया, करना अच्छे से कंप्रेस, है ना, तो ऐसे कंप्रेस किया, हाँ, ऐसे साउंड प्रोपोगेट होगा, समझे? तो अब हमें यही वाली चीज लिखने की है। चलो जाओ ऊपर बता। That when tuning fork vibrates,
ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होता है तब अक्षय क्या होता है, हमने अभी जो देखा वो कंप्रेस हो रहा है ना, कंप्रेस, तो ये पार्टिकल ऐसे आकर इधर कंप्रेस होगा, ये नजदीक में है सारे पार्टिकल्स रखे, फिर रेयरफेक्शन होता है। શું ડ્રો કરવાનું? યસ યસ, આપણ ડ્રો કરવાનું. આમાં કઈ તમને દેખાય છે? આ બધા બહુ જ નજીક છે, ચીપકેલા છે આ બધા. આ કમ્પ્રેશન છે, આ દૂર દૂર છે. આ સક્સેસિવલી ચાલુ રહેતું હોય છે. ઓકે, એન્ડ ધીસ successive continuous compression and rarefaction propagates sound continuously. ઓકે, પહેલા તો ડ્રો કરી લો બધા. तो जाइना, थैंक यू थैंक यू. हाँ, यूट्यूब में तुम लोग कुछ लखन ना करो तो रखेंगे और क्या, है ना? ना ना वो तो यस यस यस, लाइक सब्सक्राइब, है ना, फॉलो करो, है ना? यस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. जो कोई भी लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा उसकी 24 घंटों में मनोकामना पूरी होगी, है ना? तो बोलो ड्रॉ करो भाई फटाफट. 40 करोड़ શું ભાઈ, મારી પાસે અહીંયા 4000 ભેગા નથી થતા. હા, એટલા વ્યૂઝ આવે એમ, એટલા પૈસા આવે, 40 લાખ પૈસા આવી શકે. ઓહો હો, આ વિડીયો પર આવશે એટલા પૈસા. યસ યસ યસ, પૈસા નોટ રૂપીસ, પૈસા 40 લાખ. હા, ડ્રો કરવાનું છે, લે કર કર, બિંદાસ કર, કોણ ના પડે છે? હા, એ તો વાત છે. સર જ નથી, છોકરાઓ શું ભણશે? ચલો આવી ગયા પાછા સર. તો છોકરાઓ, હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હા ઉતારવો પડે ભાઈ, થોડાક વહેલા લગ્ન થાય ને. એટલે જ. ओके, सो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके अराउंड, उसके आसपास की जो एयर है वो भी वाइब्रेट करती है. ओके, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ओके मेक्स एयर अराउंड इट वाइब्रेट. ओके, when object vibrates, air particle around it also vibrates with exactly same vibration. ओके, विथ सेम वाइब्रेशन. ऑब्जेक्ट जितने वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट करता है, ओके मीन्स कि जितने ऑसिलेशन
वाइब्रेशन मीन्स रैपिड ऑसिलेशन। ओके, ऑब्जेक्ट जितने ऑसिलेशन लेता है सेम अमाउंट का इक्वल अमाउंट का ऑसिलेशन, इक्वल अमाउंट के ऑसिलेशन कौन लेगा? एयर पार्टिकल भी लेगा अराउंड इट। ओके, अराउंड इट व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एयर पार्टिकल अराउंड इट आल्सो वाइब्रेट्स विद एग्जैक्टली सेम वाइब्रेशन। सेम वाइब्रेशन के साथ ही वो वाइब्रेट करेगा पार्टिकल। और वाइब्रेट करेगा तो कहाँ से करेगा, कहाँ तक करेगा? उसके सेम पोजीशन पर ही, है ना। वाइब्रेट करता है उसके सेम पोजीशन, मीन पोजीशन, बाय इट्स मीन पोजीशन। particle of air exert same force to successive particle, successive particle। ओके, मतलब जो फोर्स है वो कैसा जाता है? सेम अमाउंट का ही फोर्स लगता है। कि पार्टिकल ऑफ एयर एक्सर्ट सेम फोर्स टू सक्सेसिव पार्टिकल। ओके, सक्सेसिव पार्टिकल्स, पार्टिकल्स till it reaches the till it reaches the air। ईयर तक पहुंचे तब तक ये पार्टिकल सेम फोर्स अपने बाद वाले सक्सेसिव पार्टिकल को देते रहेगी। ओके, सक्सेसिव पार्टिकल को देते रहे। अरे ना થાય ને, ઈયર સુધી ગયા આપણે ઈયર ડ્રમ સુધી, તો એ વાઇબ્રેશન ઈયર ડ્રમ શું કરે છે? એબ્ઝોર્બ કરે। અને એના પછી 8th સ્ટેન્ડર્ડ વાળો આખો ટોપિક। ઓકે, પેલો ટન 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 એનવિલ હેમર, યાદ આવ્યું કઈ? હે ને, પછી એ કન્વર્ટ કરશે આપણે, પેલો આખો આમ સર્કલ હતું, અંબુડા જેવું હતું, કોકિલાબેનનો અંબુડો, હે ને, એની અંદર પછી એ સાઉન્ડ શેમાં કન્વર્ટ થાય છે? ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ્સમાં, અને એ જ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ જાય છે આપણા બ્રેન સુધી। हाँ, particle of air exert same force to successive particle till it reaches the airs। Okay, and ये जो successive transformation, okay, transferring of energy है, वो क्या create करता है? compression and rarefaction, compression and rarefaction। okay, compression and rarefaction मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जब एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? मीडियम क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। मीडियम क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। ओके, तो अब हम वो वाला पॉइंट लिखेंगे। ओ this creates compression and compression, capital C, and rarefaction, capital R। okay, this create compression and rarefaction, compression and rarefaction। compression का मतलब क्या है? compression means कि when when air particle come closer, और rarefaction means when air particle separate from each other, उसको हम क्या बोलते हैं? rarefaction। अब यहाँ पर आता क्या है? इधर आएगा अब प्रेशर। प्रेशर की बात करें तो कंप्रेशन में प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। rarefaction में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ओके, प्रेशर वेरिएशन वाला कंप्रेशर। प्रेशर बिटवीन BW એટલે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ નહીં લખતા, હા ભાઈ, પ્રેશર બિટવીન
particles increases pressure between air particles decrease. હજી એક પોઈન્ટ, ડેન્સિટી. ડેન્સિટીની ફોર્મ્યુલા શું હતી? ડેન્સિટી અને ડેન્સિટી ડેન્સિટી માસ અપોન વોલ્યુમ, માસ બાય વોલ્યુમ. ડેન્સિટી જો તમને ખબર હોય તો ડેન્સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ અપોન વોલ્યુમ. ઓકે, માસ અપોન વોલ્યુમ. એ ગાયબ. હવે અહીંયા જુઓ, અહીંયા પાર્ટિકલ બહુ વધારે છે ને, માસ વધારે છે. અહીંયા માસ ઓછું છે, માસ વધારે છે, માસ ઓછું છે. ડેન્સિટી વધારે છે, ઓછી છે, વધારે છે, ઓછી છે. Density, when air particle compresses, density increases, and when rarefies, density decreases. Okay, density decreases. Density increases, density decreases. Okay, density decreases. तो ये बात ही हम याद रखेंगे, साउंड प्रोपोगेट कब होता है? कंप्रेशन और रायरफैक्शन से. ओके, कंप्रेशन, रायरफैक्शन. ऋतिक रोशन एक स्टेप याद આવે છે આના પર એમને ના એવું બધું ન કરાય ભાઈ. આ છોકરાને લખવું છે, લખવા દો એને. સારું ના લાગે એવું? અને પ્રેશર બિટવીન એર પાર્ટિકલ ઇન્ક્રીઝિસ, પ્રેશર બિટવીન એર પાર્ટિકલ ડિક્રીઝિસ. ડેન્સિટીની વાત કરીએ તો ડેન્સિટી કમ્પ્રેશનમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને રેરફેક્શનમાં ડેન્સિટી ડિક્રીઝ થાય છે. અને ઇન્ક્રીઝ અને શું? ના ભાઈ ના, એવું ના કરાય. સારું ના લાગે, કટ કરવું પડે પછી. હે ને? ના ના, મને પપ્પાએ ના પાડી છે એવું નહીં કરવાનું. મને ના આવડે એવું બધું. નથી ને યાર, છપરી જેવું લાગે. પછી કઈ ભેગું ન થાય, અમે તો કઈ થતું નથી. ઓકે, એ તો જો લાઈન તો જોરદાર આને છે. રિયાન જો ખાલી આમ કરે. હા હા, હે સ્ટેજ પર આવો ભાઈ મિત્ર. ઓડિયન્સ ને ખબર તો પડે કે નહીં આપણે એમ રિયાન કરીને બસ પછી ઓય. Density increases and density decreases. Okay, propagation of sound diagram draw કરવો પડે. હા, મેં પૂછતો નથી, મેં કહું છું. કમ્પ્રેશન રેરફેક્શન જે ડાયાગ્રામ છે એ ડ્રો કરવો પડશે તમારે. કેવી વાત કરે યાર, હે ને? હજી આપણે થોડુંક લાંબો લખવો છે. હું 2 પેજ ઓલરેડી રિટન. હા હા, આવે આવે. હમણાં મુજરા કરાવવા બોલાવીશ, કઈ વાંધો નહીં. નાચ જો અહીંયા. ઓકે, બસ બસ બસ. કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ સાઉન્ડ. શું? हाँ तो हेडिंग આપવાનું ને. है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. चलो हेडिंग दे दो सब. પછી કયો લેક્ચર છે? જોરદાર. હા,
અરે સાઉન્ડ વેવ, લોંગિટ્યુડનલ વેવ, ટ્રાન્સવર્સ વેવ આવશે એ વાળા ટાઈપ ઓફ વેવ. હા મને ખબર છે. યસ યસ. કુંજ પટેલ, what is mean by wave? વેવ. ડુમસ ગયો છે કોઈ વાર આમ? નાવા તો અચ્છા, આંટો મારવા ગયો તો ખાઈ ડુમસ, તો જાય શું કરવા? ઓકે, વેવ્સ જોઈ છે તે વેવ્સ કોઈ વાર વેવ્સ જોઈ છે? કેવી હોય? કેવી હોય? नहीं सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इज वेव, है ना? देखो व्हाट इज वेव, मैं तो बस ऐसे ही मस्त लगता है ना थोड़ा ऐसा. हाँ, वेव. वेव का मतलब क्या होता है? वेव ना, ये नहीं होता वेव. આ થઈ ગઈ આપણી વેવ. ઓકે, વોટ ઇઝ વેવ? ઓકે, ધીસ ઇઝ વેવ. ઓકે, ये हो गई वेव. ચલો હવે થેન્ક યુ સો મચ. બહુ એટલે બહુ ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો. નેક્સ્ટ ભણો. ના ભાઈ ના, નેક્સ્ટ. હા, ઇલેક્શન ઉભો રહી જાઓ.